جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح بہاولپور بھی آم کی پیداوار میں اپنی مثال آپ تھا۔ موجودہ دور میں شہر کے مضافات سے آم کے باغات کا مکمل صفایا کر دیا گیا ہے۔ آم کی پیداوار کے حوالے سے مشہور ضلع بہاولپور اپنی پہچان کھونے لگا۔ شہر کے مضافات میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث آم کے باغات کا مکمل صفایا ہو گیا۔ آم کے وسیع اور اس باغات کی جگہ دن بدن پھلتی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے لے لی۔ شہر کے مضافات میں تقریباً 50% باغات پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں تعمیر ہو چکی ہیں۔ رہی سہی کسر موسمی بیماریوں نے پوری کر دی۔ انشاءاللہ یہ آم پہلے آئے گا سرولی، ٹھیک ہے نا، 1 جون تک آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس دفعہ بہاولپور میں آم بہت کم ہے، ہر جگہ کم ہے، بہاولپور میں نہیں ہر جگہ کم ہے موسم کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ اس دفعہ موسم بڑا ٹھنڈا تھا، اس لیے پیداوار اس کی بہت کم ہے، 50% کم آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ ذائقے میں بھی اچھا ہے آم، کھانے میں بھی اچھا ہے۔ اور ادھر جو باغ تھے بہاولپور میں ان لوگوں نے ختم کر دیے ہیں، سوسائٹی بنا لی، باغ ختم ہو گئے۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ موسم سرما کے باعث آم کی فصل 50% کم ہو چکی ہے۔ تیلے اور بور کی بیماری پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ بہاولپور میں ہر قسم کا آم پیدا ہوتا ہے۔ سرولی، لنگڑا، چونسا اور دوسہری قابل ذکر ہیں۔ 1 جون سے سرولی آم کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ پانی لگاتے ہیں، پانی لگا کے اس کا جب پیدا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، بٹور وغیرہ ہوتا ہے، جب آم نکلتا ہے اس کا بٹور کاٹتے ہیں، اس کو پھر سپرے لگاتے ہیں، اور جو مکھی لگتی ہے اس کو ہے نا بوتلیں لگا کے اس کے اندر سپرے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پانی لگاتے ہیں، صفائی وغیرہ کرتے ہیں، کہ بہت محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب آم تیار ہونے والا ہے الحمدللہ، جب تیار ہوگا پھر بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ کاشتکاروں کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کسانوں کو پھر سے آم کی کاشت کی طرف راغب کرے۔ حکومت کی طرف سے کسانوں کو موسمی بیماریوں کے تدارک کے لیے آگاہی فراہم کی جائے۔ کیمرامین علی رضا کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کسان پریشان۔ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود کاشتکاروں کی گندم حکومتی ریٹس پر فروخت نہ ہو سکی۔ چھوٹے کسانوں کے ساتھ بڑے زمیندار بھی مشکلات سے دوچار۔ جنوبی پنجاب کا کسان حکومت کے رحم و کرم پر پاکستان دنیا کا 6واں زرعی ملک ہونے کے باوجود گندم بدحالی کا شکار ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث کسان کی گندم فروخت نہ ہو سکی۔ پروگرام بنام سرکار میں کسانوں کا کہنا تھا کہ بیٹ کے علاقے میں صرف گندم ہی کاشت کی جا سکتی ہے، ہمارا ذریعہ معاش گندم پر ہی چلتا ہے، حکومت اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ اسٹوریج کا مسئلہ ہے، اس کو پیک کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے بعد دوسری فصل لگانے کے لیے اس کے لیے بھی کیپٹل ضرورت ہے۔ تو اسی لیے ہمارا مین فوکس ہے کہ جس اسٹیٹ پہ بھی نکلے اس کو نکالیں، کیونکہ ہمیں نہ فوڈ کوئی رسپانس دے رہا ہے، نہ کوئی پاسکو رسپانس دے رہا ہے، کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہا۔ تو اسی لیے ہم ابھی کنفیوز ہیں کہ کیا کریں۔ پاسکو والوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 700 روپے بوری کے پیچھے رشوت ہے، اس کے علاوہ 3 کلو اس کے پیچھے کاٹ ہے پڑی، وہ حساب وہی 3100 میں آ کے پڑتا ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اس سال گندم کی پیداوار بہت اچھی ہوئی، مگر حکومت گندم خریدنے کو تیار نہیں۔ آگے سوچنا ہوگا گندم کاشت کریں یا نہ کریں، حکومت اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرے اور کسان سے گندم خریدے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی گندم اترتی تھی بیپاری آ جاتا تھا، اور آنے کے بعد جو ہے نا وہ سیل آؤٹ ہماری ہو جاتی شروع ہو جاتی تھی۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے سینٹر پہ، اب بکینی میں بیپاری گئے بیٹھے ہیں، سینٹر پہ بندہ ہی نہیں ہے، ڈیوٹیاں بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ پروگرام بنام سرکار میں کسانوں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے گندم نہ خریدی تو آئندہ سال گندم کی کاشت نہیں کریں گے، جس سے ملک میں گندم کا بحران پیدا ہوگا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سلمان ضمیر، روہی، ملتان۔ بات کریں گے ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی الیکشن کا معاملہ سیاسی جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا۔ نون لیگ کی اہم وکٹیں گرنے لگیں۔ سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن نے سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سابق MP سینئر لیگی رہنما شہزاد مقبول بھٹا پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ملتان کے حلقہ NA148 میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، حلقے میں سیاسی جوڑ توڑ عروج پر، پاکستان مسلم لیگ نون مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ سابق وفاقی وزیر سکندر حیات بوسن نے سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور سابق MP ملک ارشد راہ نے ساتھیوں سمیت سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق MP و سینئر لیگی رہنما شہزاد مقبول بھٹا بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ شہزاد مقبول بھٹا نے علی موسیٰ گیلانی اور علی قاسم گیلانی کے ہمراہ اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا۔
हल्का में अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर महे में कांटे मुकाबला मुतवक्के। शहरियों का कहना है कि हल्के में अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बाइस सीवरेज, साफ पानी और तालीम जैसे मसाइल जूं के तू हैं। सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम है, हमने चेयरमैन सेनेट को भी कहा है और इंशाल्लाह अपने जो लीडर हैं उनको भी कहा है कि इंशाल्लाह सीवरेज का बहुत अहम मसला है मुल्तान में। हल्का NA 148 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जुहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला, उम्मीदवारों की तैयारियां अरूज पर। मुस्लिम लीग नून ने PP 269 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 में ज़िमनी इंतखाब का मामला। मुस्लिम लीग नून ने हल्का PP 269 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। लीगी MPA अजमल खान चांडिया की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल खान चांडिया, साबिक लीगी उम्मीदवार मंजूर खान चांडिया और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अकरम खान चांडिया ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी की हिमायत का ऐलान किया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ मैं शुक्रगुजार हाँ इतना मौजूद हर बुजुर्ग का, हर नौजवान का, हर जवान का, हर बिरादरी तो ताल्लुक रखने वाले हर फर्द का, बच्चे भी आए वदन, नौजवान भी आए वदन कि तुसा मेहरबानी की तुसा मुफ्त से वक्त दे विच अज इतना तशरीफ घेन के आए वे और तुम्हारी जी तशरीफ आवरी है ये सारी इज्जत अफजाई तो मतलब जी सारी इज्जत अफजाई की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। MP अजमल खान चांडिया का कहना था कि वो और मुस्लिम लीग नून की मकामी क़ियादत पार्टी फैसले के मुताबिक PP 269 के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। इनकी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाएंगे। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मियां अलमदार अब्बास कुरैशी का कहना था कि वो ज़िमनी इंतखाब में हिमायत पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत और मकामी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सब तो पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें मेरे उत्ते एतमाद किए और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट दी है। और उन्हें बाद मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत का मशकूर हाँ कि जिन्होंने मेहरबानी करके अपने सारे जितना उन्होंने अपने MPA टिकट होल्डर जितना उन्होंने दोस्त सारे को उन्होंने मेरी हिमायत की खातिर इंस्ट्रक्शन दी है। हल्का PP 269 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 मई को सजेगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। महंगाई से सताई अवाम के लिए खुशखबरी। रहीम यार खान में चिकन 50 रुपए सस्ता हो गया। मार्केट में चिकन 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। रहीम यार खान में इंतजामिया महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब होने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी। मार्केट में चिकन 50 रुपए सस्ता होकर 500 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दुकानदारों का कहना है कि डिमांड में कमी और सप्लाई बढ़ने से चिकन सस्ता हुआ। आइंदा दिनों तक चिकन मजीद सस्ता होगा। ये है कि शादियों का सीजन खत्म हो रहा है, ऊपर से गर्मी भी शुरू हो गई। गर्मी में भी लोग चिकन कम खाते हैं, उसकी सेल जो है ना कम हो गई है। इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि 50 रुपए किलो और कम हो गई है, 500 रुपये रेट हो गया है। और चिकन भी ज़्यादा तैयार हो रहा है। अब जब ज़्यादा तैयार हो रहा है तो फिर उसकी ज़ाहिर आगे डिमांड तो कम होगी ना, कम हो गई। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया का चिकन की कीमत में कमी लाना काबिले तारीफ इकदाम है। महंगाई से हर शहरी का गुजर बसर मुश्किल हो रहा था। महंगाई को कंट्रोल करना वक्त की अहम जरूरत है। बहुत खुशी होती है। चिकन पहले बहुत महंगा था, अब सस्ता हो गया। मजीद बाकी चीजें भी ऐसे सस्ती करनी चाहिए, बस हमें यही रिलीफ मिल जाए। शहरी ने इंतजामिया से चिकन की कीमत में मजीद कमी लाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियां सस्ती हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हो गई। शहरियों के लिए अच्छी खबर, गाड़ियों की कीमत कम हो गई। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां 4 लाख से 15 लाख रुपए सस्ती हुई हैं। शहरियों का कहना था कि गाड़ी की कीमतें कम होना खुशाइन बात है। जो लोग कम पैसों में अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं वो अब खरीद सकते हैं। जो शहरी खुश हैं कि जिन गाड़ियों के रेट नीचे आने की वजह से, उनमें वो शहरी भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके या तनख्वाहों में से पैसे सेव करके गाड़ियां खरीदी और आज उनकी गाड़ियां 20-20 लाख रुपया डाउन हो गई हैं। लेकिन फिर भी चलें, दुआ है कि अगर गाड़ियों के रेट नीचे आएंगे तो हमारे जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े कम पैसों में अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम लोग अगर गाड़ियां लेने आते हैं तो गाड़ियों का रेट जो है वो पुरानी गाड़ियों का रेट वहीं खड़ा हुआ है, नई गाड़ियों का रेट जो है वो नीचे आ गया। अब हमारे लिए मुश्किल ये हो गया कि हम कौन सी गाड़ी परचेज करें। शोरूम मालिक राना फहद अली शेर का कहना था कि जिन गाड़ियों की सेल नहीं होती उनकी कीमतें कम हुई हैं। गाड़ियों का काम ठप हो चुका है।
लोग अभी इंतजार में हैं कि बाकी कंपनियां भी रेट कम करेंगी। कारोबार भी पहले बहुत स्लो था, अब लोगों के जहन में ये है, सब इस इंतजार में है कि होंडा भी अपनी कीमतें गिराएगी, करोला भी अपनी कीमतें गिराएगी, तो इसलिए अब मार्केट थोड़ी सी क्रैश तो हुई है मार्केट, लेकिन ये है कि अल्लाह करे बाकी कंपनियां भी ऐसे ही रेट कम करें, तो वक्ती तौर पे तो नुकसान है ताजरों को, लेकिन इंशाल्लाह ताला फिर कारोबार का सर्कल चलेगा। शोरूम मालिकान का कहना था कि कंपनियां गाड़ियों के रेट्स को मुस्तहकम करेंगी तो कारोबार में बेहतरी आएगी। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। जहानिया में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की जेर निगरानी फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। मेडिकल कैंप में शहरियों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई। जहानिया में होम्योपैथिक एसोसिएशन के जेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर्स ने शिरकत की। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह ख्वाजा शाह ज़ेब ने किया। फ्री मेडिकल कैंप में 500 से ज्यादा मरीजों का इलाज और अद्वियात फराहम की गई। डॉक्टर्स का कहना था कि होम्योपैथिक कदीम तरीका इलाज है, जिससे लाइलाज मरीजों का कामयाब इलाज किया जा रहा है। जी, यहाँ पे ये जो है दाऊद होम्योपैथिक क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। उस सिलसिले में यहाँ पे एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पे तकरीबन 500 से ऊपर पेशेंट का चेकअप का एस्टीमेट बनाया गया, लेकिन यहाँ पे लोगों की तादाद देखते हुए हमें महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद तक मरीज़ यहाँ पे आएंगे। जो लोग मनफी जो जहनीत के सोच के हामिल हैं या मनशियात के आदिल अफराद हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लिवर सोरासिस, पेट में पानी आना और फेफड़ों में पानी आना और दीगर जोड़ों के दर्दों के अमराज हैं, जो आजकल भी नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, जो एक से दूसरी बीमारियों की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उनका मौसर होम्योपैथिक तरीका इलाज किया जा रहा है। होम्योपैथिक जमाना कदीम से इंसानियत की खिदमत कर रही है। अब लोग होम्योपैथिक से इलाज करवाकर कैंसर समेत दूसरी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, मगर हुकूमत होम्योपैथिक को सपोर्ट नहीं कर रही। डॉक्टर्स का कहना है कि होम्योपैथिक कैंसर, लीवर सेरोसिस, मनफी सोच के हामिल अफराद और मनशियात के आदि अफराद के लिए इंतहाई मौसर साबित हो रही है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही, जहानिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ मियां उस्मान अली की जेर सदारत सैलाब की मुमकिन सूरत हाल पर इजलास। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे सैलाब से निमटने के लिए अपना अपना प्लान तैयार करके PDMA ऑफिस में जमा करवाएं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ नासिर शहजाद डोगर समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मुतल्लिका महकमे सैलाब से निपटने के लिए अपना अपना प्लान तैयार करके पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के दफ्तर में जमा कराएं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो अपनी अपनी तहसील में मुतल्लिका एक्सियन आबपाशी के साथ फ्लड बंदों का मुआयना करेंगे। महकमा आबपाशी के अफसरान फ्लड बंदों की तामीर और मुरम्मत के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें, दरियाई इलाकों में कायम तजावुजात का खात्मा किया जाए और नालों की सफाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यू 1122 के हुकाम को मई के पहले हफ्ते में मॉक एक्सरसाइज का इंतजाम करने और महकमा सेहत हुकाम को सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। DO PDMA इरफान सियाल ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल में जिला मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों को दोनों दरियाओं का पानी मुतासिर करता है। सैलाब की सूरत हाल में जिला भर में 27 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए जाएंगे। कैमरा टीम की हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। सादिकाबाद में कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद। महकमे ज़राअत और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के इश्तिराक से मुनक्किदा सेमिनार में किसानों को आगाही फ्राहम की गई। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और महकमा ज़राअत ने बाहमी इश्तराक से कपास के काश्तकारों के लिए सजाया आगाही सेमिनार, जिसमें ज़रई माहिरीन और किसानों ने भरपूर शिरकत की। ज़रई माहिरीन ने किसानों को कपास की काश्त, जमीन के तज्जिए, मियारी बीज और खाद के हवाले से मुफीद मालूमात फराहम की। ज़रई माहिरीन का कहना था कि कपास हमारी एक अहम फसल है, जिसकी काश्त और पैदावार में इजाफा वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़रई माहिरीन ने किसानों को कपास के ट्रिपल चेन बीज इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, जिसमें कुव्वत मुदाफ़ियत ज्यादा होती है। FFC की मैनेजमेंट का मशकूर हूँ कि जॉइंट कैलिब्रेशन से उन्होंने फार्मर्स की आगाही के लिए सादिकाबाद में एक कपास का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की। मकसद टीम वर्क एक्टिविटी का काश्तकारों की हौसला अफजाई करना भी है और वो पोशीदा अवामिल जिनसे वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में मुगालते का शिकार हो जाते हैं या भूल जाते हैं, चलो उनको भी वहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया जाए और वो कपास की काश्त को भरपूर तरीके से जो है ना सरअंजाम दें। हेड ऑफ सेल्स FFC ज़हूर अहमद ने कहा कि किसान अपनी ज़मीनों का मुफ्त तज्जिया करवाएं, जिससे ज़मीन की तैयारी में मदद मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कपास की बिजाई का वक्त है और इसी मौके की मुनासबत से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने
किसानों की आगाही के लिए और उन्हें जदीद ज़राअत से रोशनास करने के लिए कपास की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया है। और इस सेमिनार से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे काश्तकार भाई हैं वो हमारे जो ज़राअत के माहिरीन हैं उनके मशवरों पर अमल करके इंशाअल्लाह अपनी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा करेंगे और इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। सेमिनार में शरीक किसानों का कहना था कि ये सेमिनार हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ। बदकिस्मती से हमें कपास का म्यारी बीज फराहम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कपास का उगाव कम होता है। आज के इस सेमिनार को जो है वो मैं सराहता हूँ कि एफएफसी वालों ने किसान के लिए एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, ठीक है। और मेरी इसमें जो है किसान को बेसिकली उन्होंने फर्टिलाइजेशन और सीड और पेस्टिसाइड के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। किसान जो है वो पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखता है और मेरी जो है गवर्नमेंट से भी और इन तमाम फर्टिलाइजेशन के डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश है कि इन ऐसे सेमिनार्स को जो है वो लोकल बेसिस पे, गांव की बेसिस पे और कस्बों की बेसिस पे भी ऑर्गेनाइज किया जा सके। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा एफएफसी की तरफ होना। ये सानू जिम्मेदारों में बड़ी फिक्र मिली कि खाद का खर्चा ना साडा वो बेतुका हो जाता सीगा। असी DAP ज़्यादा इस्तेमाल करते सी जिसकी जरूरत नहीं सी हुंदी, इस करके वो जिहड़ा इन्हां ने सानू उहदी मकदार समझाई है कि DAP की जगह SOP करो, NP करो, दूसरी यूरिया खादा जिस तरह वो जिंक वाली खाद आ गई है, इन्होंने खादा का ये चीज़ों का जिम्मेदार को नहीं पता। ये चीज़ां जिम्मेदार को पता लगेगा तो उसदे नाल उसका खर्चा घट जाएगा, औसत वध जाएगी। किसानों को कपास की काश्त और पैदावार बढ़ाने के हवाले से आगाही फराहम करना खुश आइंद इकदाम है। कपास की बेहतर पैदावार से न सिर्फ किसान बल्कि मुल्क के माशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मलक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। पोलियो से पाक मुआशरे कमिश्नर मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पसीर। महकमे सेहत हुकाम का कहना है कि 5 दिन में 9,97,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। मुल्तान में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। महकमे सेहत ने मुहिम के दौरान 97.53% टारगेट मुकम्मल किया। पोलियो टीमों ने 9,97,500 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। गुज़िश्ता रोज 17,262 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि मुहिम के दौरान 50 वालिदैन ने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया। 44 वालिदैन को समझाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। 6 बच्चों के वालिदैन को मनाने की कोशिश की जाएगी, ना मानने पर FIR दर्ज होगी। जबकि 39,000 रह जाने वाले बच्चों को कतरे पिलाने के लिए टीमें फील्ड में रहेंगी। महकमा सेहत की जानिब से 4,000 से ज्यादा टीमों ने इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने के लिए काम किया। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में टमाटर की फसल पक कर तैयार हो गई। खेतों में टमाटर की फसल की बर्दाश्त का अमल शुरू हो गया। काश्तकारों का कहना था कि टमाटर की फसल को जनवरी में काश्त और मई के आगाज में बर्दाश्त किया जाता है। मुल्तान में टमाटर की फसल तैयार हो गई। खेतों में टमाटर की फसल की बर्दाश्त का अमल शुरू हो गया। किसानों का कहना है कि रवां साल टमाटर की फसल बीमारियों और पेस्ट के हमले से महफूज रही है। मंडी में 12 किलोग्राम की पल्ली 250 रुपए के हिसाब से फरोख्त हो रही है। काश्तकार कहते हैं कि इस साल खादों की कीमत में बहुत इजाफा हुआ, लेकिन टमाटर की कीमत कम मिल रही है। फरवरी में काश किया था ये जनाब, तो तकरीबन ये 200 से 250 पल्ली निकला थी एक एकड़ में से। अब 250-300 की बिक्री है ये नहीं। हम तो यही कहते हैं भी खाद का रेट भी नीचे है, स्प्रे का भी रेट नीचे है, भी गरीब भी खा सके, चलो जो नॉर्मल है वो बिक रहा है ये। काश्तकारों का मजीद कहना था कि टमाटर की फसल को जनवरी में काश्त और मई के आगाज में बर्दाश्त किया जाता है। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा अली रियाज, रोही, मुल्तान। मुल्तानियों ने इतवार के रोज तफरी गाहों का रुख कर लिया। फैमिलीज की बड़ी तादाद छुट्टी एंजॉय करने किला काना कासिम बाग पहुंच गई। मुल्तान के बासियों ने छुट्टी के रोज तफरी गाहों का रुख कर लिया। शहरियों की कसीर तादाद छुट्टी एंजॉय करने के लिए किला कोहना कासिम बाग पर पहुंच गई। बच्चों ने दोस्तों के साथ खूब झूले झूले। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों का ट्रिप यहाँ लेके आए हैं। चूँकि मुल्तान की एक तारीखी हैसियत है, तो जो भी आता है वो किले पर लाजमी आता है और यहाँ पर जो मुल्तान की तारीख है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। यहाँ म्यूज़ियम में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं तारीख के हवाले से, तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अपनी तारीख से भी और अपने जो आबाओ अजदाद से उनसे भी रोशनास करा सकें। शहरियों का कहना था कि मौसम तो गर्म है मगर सैर तफरी से सेहत बेहतर रहती है। दीगर शहरों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वफ्द भी किले की सैर करने पहुंचे। उनका कहना था कि दोस्तों के हमरा इतवार की छुट्टी मना रहे हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो है वो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। धूप बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों के साथ बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे आके हमें अच्छा लगा है।
गर्मी की वजह से थोड़ा मतलब परेशानी तो हमें हो रही है कि अभी कहाँ आ गए हैं, बाकी ठीक है ओवरऑल। मुल्तान के मशहूर तफरीही मकाम दमदमा पर भी शहरियों ने खूब एंजॉय किया। गर्मी को दूर भगाने के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पर खूब हाथ साफ किए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक रूही, मुल्तान।